ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ المصطفى ورسولہ المجتبى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ عقیدت احترام کے ساتھ بلند آواز درود ان کا نذرانہ ہو جائے۔ اللہم صلی علی وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا۔ درود شریف پڑھنا آتا ہے سب کو؟ یہ کشمیری سمجھتے ہیں؟ کشمیری آپ کو کشمیری میں کہنا ہے مجھے؟ اگر مکس یہی تو مشکل ہوتی ہے، کہاں پہ پھر کشمیری کریں، کہاں پہ پھر اردو کریں۔ اچھا، اردو میں اگر میری بات سمجھ رہے ہو تو درود شریف پڑھنا آپ کو آتا ہے؟ تو ایسی سستگی، مجھے تو لگتا ہے صبح سے اس نے اپنا گلا پھاڑ دیا بیچارے نے، بس اتنا کہنے کے لیے کہ آپ بیدار ہو جائیں۔ اچھا، کب آپ یہ کمل اٹھاؤ گے؟ پھر بلند آواز سے کہیے اللہم سیدنا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا محمد وبارک صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نورم من نور اللہ، واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ دوئی۔ قصہ مختصر پوشن قریب مال یا رسول جان باپ، پوشن قریب مال یا رسول جان باپ، لولک شمع بزال یا رسول جان باپ، لولک شمع بزال یا رسول جان باپ۔ اتنا آپ کو کہنا ہے یا رسول جان باپ، لیکن بلند آواز سے، باقی مجھ پہ چھوڑو، باقی میں پڑھتا ہوں۔ اتنا پڑھ سکتے ہو، پوشن قریب مال یا رسول لولک شمع بزال یا رسول روزی رسول چپل موت عاشقان ہوش آموت، روزی رسول چپل موت عاشقان چوش آموت، مارا نہرن چھال یا رسول جان باپ، مارا چھوہرن چھال یا رسول، بلند آواز سے کہیے پوش
پوشن کریب مال یا رسول دبس چھم دور میں مدینہ دوری رن سوٹو میں سینہ چھم دور میں مدینہ دوری رن سوٹو میں سینہ آتھ نیبر کرت ونس کم کم ستم بچا یا رسول چاہنے باپت کم کم ستم بچا یا رسول چاہنے باپت پوشن کریب مال یا رسول چاہنے باپت ناد لائی بے حجاب آؤ من کا جواب ناد لائی بے حجاب آؤ من کا جواب دیتی میں شبن میں نال یا رسول چاہنے باپ دیتی میں شبن میں نال یا رسول چاہنے باپ بلند آواز سے جھوم کے کہیے پوشن کرائب مال یا رسول چاہنے باپ کروات بو مدینہ دود مد یسین ہاوئی کروات بو مدینہ دود مد یسین ہاوئی توئی دوہرات چھس ودان یا رسول چاہنے باپ دوہرات چھس ودان یا رسول چاہنے باپ پوشن کریب مال یا رسول چاہنے باپ عید سون مہمان رن حیب وازوان عید سون مہمان رن حیب وازوان مگر نبی ژیوت نہٕ تیٚلہِ کُس دپان سٲری انکھ بسال یا رسول چاہنے باپ سہری انکھ بسال یا رسول چاہنے باپ پوشن کریب شجر پائن ببوس کرت نیب پوش جر پائن ببوس رسول چاہنے باپ لولک شمع بزال یا رسول چاہنے باپ مگر کم اللہم یا حفیظ یا فیاض من جمیع البلایا والامراض اللہم احیینا علی الاسلام یا اللہ وامتنا علی الایمان فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ذی عزت ذوی الاحتشام جملہ علماء کرام آئمہ حضرات قرآ حضرات حفاظ کرام
अराकीन मजलिस हाजा शेखुल मशाइख कुतुबुल अक्ताब वली कामिल हजरत बाबा हाजी मोहम्मद खान अलैहि रहमा व रिदवान जी इज्जत ज़वील एहतिशाम बुजुर्ग हजरात, अजीज नौजवान दोस्तों, पर्दा निशी इस्लामी माओं और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा फ अहसनल जज़ा असअदकुमुल्लाहु फि दारैन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह बेकस पनाह में लातेदाद हम्दो सना, जिस परवरदिगार ने हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। हम्दो सना के बाद लातेदाद दुरूद व सलाम बरज़ाते आकाए नामदार, आपके मेरे दिलों के करार हजरत रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर, जिसकी मोहब्बत में हम सबको जमा होने की तौफीक रफीक अता अल्लाह ने फरमाई। बहरहाल आप सुबह से हमारे इन मुख्तदर उलमाए किराम के खिताबात समात कर रहे थे, जिन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ तकारीरें आपके समातों के हवाले किए। मुझ नाचीज को भी दावत थी, मैं हाजिर खिदमत हुआ। मुख्तसर कुछ गुज़ारिशात लेकर पिछले साल की तरह भी आज इस दिन पर भी बारिशों का सिलसिला जारी हो सारी है। पिछले साल की भी ऐसी ही कोई हालत हुई थी तो हमें टेंट से यहाँ मस्जिद में आना पड़ा था, शायद आप सबको याद होगा। फिर मस्जिद में ही मैं वो प्रोग्राम उसके बाद चला। आज सुबह से ही मस्जिद में ही इसको इसीलिए रखा गया क्योंकि मौसमी हालात साजगार नहीं थी और इस वक्त भी आप देख रहे हो कि बारिश पड़ रही थी। इसीलिए इंतजामिया ने ये प्रोग्राम मजलिस में मुनक्कद किया। बहरहाल वक्त बहुत कम और दामनगीर है, मुख्तसर कुछ गुजारिशात करके हम भी आपसे रुखसत हो जाएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह जिस खतीब या जिस भी आलिम ने सुबह से अभी तक आपके सामने तकारीर या तकरीर की, उस पे अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम अमल पैरा कुछ ही बातों पर होना लाजमी बनता है। तो मेरी भी गुजारिश इन्हीं औलियाए इज़ाम के बारे में रहेगी, क्योंकि उर्स जब भी होता है, मैं शायद अभी सुनता था शरीफ साहब तौबा के बारे में आपको बता रहे थे, किसी की जुबानी मैंने औलिया की अजमत भी सुनी और कोई नमाज के बारे में भी कह रहा था। तो इसीलिए आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि इन सारे मौज़ूआत को ज़हन नशीन करें और अल्लाह से दुआ मांगे कि हमें इन सारी बातों पे अमल अता फरमाए। देखो, बात आपको भी करनी है, चुप नहीं रहना है। जितना आप मचल मचल के बात करोगे उतना मैं भी सुनाते जाऊंगा। जितना वक्त फिर यहाँ निकले उतना अल्लाह की तौफीक, अल्लाह की अता करदा। आप सभी बखूबी वाकिफ हैं कि आज भी हमारे यहाँ के ताज शेखुल मशाइख कुतुबुल अक्ताब वली कामिल हजरत बाबा हाजी मोहम्मद खान अलैहि रहमा व रिदवान का उर्स मुबारक मनाया जा रहा है और बड़े ज़ौक़ शौक से दूर दराज से लोग इनके अकीदतमंद वाले यहाँ तशरीफ फरमा होते हैं। अल्लाह आप सभी की ये हाजिरी कबूल फरमाए और हमें इस हाजिरी के बदले नेमुल बदल अता फरमाए और इस हाजिरी के बदले हमें आका अलैहि सलातु वसलाम के दरबार में रोज़े महशर इनकी शिफात नसीब हो जाए। अजीज़ान मोहतरम, इन औलिया के बारे में सुबह से आपने आयतें कुरान पाक की अहादीसें समात फरमाई हैं। रब काबा इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला, दोनों या एक ही।
सुबह पे गो अस अवे मूजूब जमा ताकि अस करो यम सुन फैज हासिल अम सिंदन अनवारातन गसो के आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्या पता सारी मजलिस को अल्लाह मगफिरत फरमाए। अवे मूजूब में तो सारे गुजारिश तिकाज अब मुझे बेकिस बोलना है, सारे गुजारिश कि तुम करू थोड़ा बहुत पनुन जहन अम खतर तैयार कि अस क्या दरबारस मज यवन। आपको थोड़ी तवज्जो है मेरी तरफ। देखो इस वक्त कितने लोग अपने घरों में आराम से बैठकर चाय और खाना या चावल तनावुल फरमाते होंगे। कितने लोग पता नहीं किन किन कामों और गुनाहों में मुब्तला होंगे। लेकिन अल्लाह का करम है तोहित मे पे कि अशुन वनकस पन्निस खास वली कामिल पन्निस खास मकबूल बंद सिंदिस दरबारस अंदर जमा गसनुक अमे हालत तौफीक अता कोरमुत। बुलंद आवाज से एक बार सुभान अल्लाह कहिए, क्योंकि मौलाना रूम फरमा रहे हैं हर की खाहद हम नशीने बाखदा। बुलंद आवाज। अभी मैंने कहा आपको बारिश से थोड़े भीग गए हो, तकलीफ पहुंची है, कोई बात नहीं, इसका मुआवजा भी अल्लाह से लेंगे इंशाअल्लाह। लेंगे या नहीं? हाँ, इसीलिए कह रहा हूं मैं हर की खाहा हम निशीनी बाखुदा। जो भी आप में से ये चाहता है कि मैं अल्लाह के दरबार में कुछ देर बैठूं, नहीं कहते हो ना, कहां कहते हो? जिसका भी ये मन हुआ कि मैं कभी अल्लाह के दरबार में बैठूं, अल्लाह के पास बैठूं, अल्लाह के नजदीक बैठूं, उसके लिए मौलाना रूम फरमा रहे हैं ओ नशीना दर हुजूरे औलिया। उसके लिए अब आपको मुझे चाहिए कि हमें वलियों का दामन मजबूती से पकड़ना है, वलियों के दरबार में कभी कभी बैठना है। मैं बुलंद आवाज का मुंतजिर रहूंगा। अरे मुझे सुनने वालों इस बात को ज़हन नशीन करो, जो भी अल्लाह के दरबार में आता है इसका ये बैठना अल्लाह के नजदीक बन जाता है। इसीलिए मैं अपने इन तमाम सामीन से गुजारिश करना चाहता हूँ, अल्लाह आपको मुझे भी चाहिए कि हमें वही दिल यहाँ रखना चाहिए। उसी दिल से मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, उसी तरह हमें भी यहाँ तशरीफ फरमा होना चाहिए। जैसे आपके मेरे गुनाह भी अल्लाह माफ़ फरमाएगा। क्योंकि अभी अभी आप किसी को सुन रहे थे, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के घर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जाते थे, उनको अल्लाह ने बेटा भी अता फराहम किया। जब कोई नबी भी वलिया के दरबार में दुआ करे, जब कोई नबी भी वलिया के दरबार में जाए, तो मेरे कुंडरदान या रदानी या चसाना या रियासी के लोगों को कोई क्यों मना करेगा। वल्लाह मैं भी आपसे इसीलिए मुखातिब होकर आया हूँ, आपके लिए कराऊं। अल्लाह का नबी अलैहिस्सलाम भी इन्हीं अल्फाजों के साथ हमें रोबरो कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु रिवायत फरमा रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर आप किसी मोमिन को इज़ारो ज़ुकिरल्लाह, जब आप किसी मोमिने खुदा का चेहरा देखोगे तो याद खुदा आ जाएगा। समझ लेना कि ये वलिया अल्लाह का पक्का मोमिन बंदा है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अल्लाह जो भी वलियों के दरबार आया उसे अल्लाह ने बुलंद इनामातों से नवाजा है। अपने दिलों को ऐसा बना लो, अपने दिलों को ऐसा सजा लो, अपने दिलों को ऐसा कर लो ताकि हमारे दिलों में भी कोई ऐसी बात आ जाए जिससे अल्लाह हमारे सारे पिछले गुनाहों को माफ फरमाएगा। आमीन 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 आमीन। इबादत होकर भी अल्लाह की रहमत शामिल हाल होनी चाहिए। आमाल होकर भी अल्लाह की रहमत जरूरी है। आमालों का अंबार हो तब भी इंसान को जरूरी है कि वो अल्लाह की रहमत के लिए तलबगार बैठे।
क्योंकि बनी इसराइल का 400 वाला इबादत, 400 साल इबादत करने वाला बंदा, इसे लग रहा था कि मैंने अपनी मुकम्मल इबादत कर ली है, मैं अपनी अमलों के बदौलत कल जन्नत में जाऊंगा। लेकिन मुसलमानों, जब ये अल्लाह के दरबार में हिसाब के लिए पहुंचा तो वहां पे कहा गया कि आप हिसाब दो। हिसाब दे दिया गया, अमले इसकी कबूल हो गई। अल्लाह ने रहमत के फरिश्तों को फरमाया, जाओ मेरी रहमत से इसको जन्नत में ले जाओ। थोड़ी सी तवज्जो रखना आप यहाँ मेरी तरफ। बस जब कहा गया कि मेरी रहमत से इसको जन्नत में ले जाओ, तो ये बंदा वापस पलटा, कहा मेरे अल्लाह 400 साल मैंने बेरिया इबादत आपकी की है, 400 साल तक मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने ये इबादत इसीलिए की थी ताकि मुझे किसी की कोई हाजत और जरूरत ना पड़े। लेकिन क्या इतनी इबादत करने के बाद मुझे यहाँ तेरी रहमत की फिर जरूरत पड़ी? वहां से वो वापस जब ही जवाब देने लगा तो अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि इसकी सारी तमाम अमालों को नापा जाए, लाइए इसकी सारे अमाल, हमें इसके अमालों का अब जायजा लेना है। क्या इसने मेरा हक अदा किया है, मेरी दी हुई नेमतों का हक अदा किया है? जब इसकी सारी अमाल, सारे अमाल जमा किए गए, मीजान के एक पलटे में डाले गए, अल्लाह ने रहमत के फरिश्तों को कहा मेरी दी हुई सिर्फ एक आंख निकाल दो। अगर एक आंख का भी इसने हिसाब मुकम्मल किया होगा, मैं आज इसको यहाँ इस बड़े बज़्म में यहाँ पर हर किसी के सामने रुखसत करके जन्नत के लिए मैं जा फजा इनाम अता करूंगा। अगर इसने अभी अपनी एक आंख का भी नहीं किया है बदला, तो फिर इसको बता दीजिए कि आपके लिए जहन्नम होगा। जब अमाल 400 साल के जमा किए गए, एक आंख एक पलड़े में रखी गई, तो आज भी आप रिवायत को किताबों में पढ़ सकते हो। सारी इबादत, इसके अमाल एक आंख के बदले में भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुए थे। इसीलिए मेरे अल्लाह ने जब इसकी तरफ नजरे रहमत फरमाई, कहा बंदे आज तक तो इतनी इन इबादतों और इतने अफजलियत वाले आमालों से आपने एक आंख का भी बदला अदा नहीं किया है। अब बता दूसरी आंख का कब देगा? अब बता इन बाकी इनामातों या बाकी आज़ा का कब देगा? इस बंदे ने अपने सर को झुका लिया, लेकिन मेरे अल्लाह फरमाने लगे फरिश्तों, अब मेरे गजब से इसको जहन्नम में ले जाओ। इसने 4 साल की इबादत पे फख्र महसूस किया, इसने 400 साल इबादत करके अपने आप को कहा कि मैं कुछ बन गया। आओ, इसने अभी तक अपनी एक आंख का भी बदला नहीं दिया है। मेरे अल्लाह अब करना क्या है? तुम कुछ नहीं, जहन्नम में ले जाओ। जब जहन्नम की तरफ लेने लग गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने ज़ीशान हुआ, इस बंदे के लिए जब इसको चलाने लग गए, जहन्नम की तरफ ले जाने लग गए, तो बीच बीच में ये पीछे की तरफ मुड़ने लग गया, बीच बीच में ये पीछे की तरफ नजर देता चला गया। मैंने कहा बंदे नजर किसकी तरफ देता है? कहा अपने अल्लाह की तरफ। मैंने कहा अभी तो तूने इसको कहा कि मुझे रहमत के लिए क्यों जन्नत में जाना है, अब तुझे अल्लाह की क्या फिक्र? जा, चला जा, तूने तो एक आंख का भी हक अदा नहीं किया है। ये वापस कहने लगा, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, तहरीके सौतुल औलिया, फैज़ाने औलिया। ये कहने लगा वापस 2-3 बार जब इसने नजर दी, आपका मेरा सवाल ये रहेगा, अभी तो आपने रब के सामने जैसी ऐसी हालत बना दी कि मुझे तो आपसे नहीं चाहिए कोई रहमत वहमत, मैंने 400 साल इबादत इसलिए की ताकि जन्नत में जाऊं। अब जब एक आंख का भी हक अदा नहीं हुआ,
आवाज से सुभान अल्लाह कहिए। एक का भी हक अदा नहीं हुआ तो मेरे अल्लाह फरमाने लगे फरिश्तों से, 3 बार जब इसने पीछे नजर दौड़ाई, अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, इसको अल्लाह ने इसी वक्त रोक दिया, कहा ए फरिश्तों वापस आ जाओ, ऐ मेरे फरिश्तों इसको वापस कर दो, मुझे पहले इससे कोई बात करनी है कि क्या वजह रही, अब पीछे की तरफ नजर क्यों देते हो। जब सामने लाया गया, कहा मुझे अल्लाह आज इस बात का बखूबी इल्म जाहिर हो गया, तेरी रहमत के बगैर दुनिया का कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथ उठा करके जवाब दे नारे हैदरी। इसीलिए मेरी गुजारिश रहेगी आप सबसे, इसके बाद में कोई बात आपसे अर्ज करूंगा, मेरी गुजारिश रहेगी दिल को नरम कीजिए, आंखों को तर कीजिए, जब भी इन दरबारों में आपका आना होगा। वल्लाही मैं कहता हूं अगर एक भी इंसान यहाँ पे अपने आप को नरम दिल और आंख तर रख लेकर वापस चला गया, अल्लाह उसके सारे गुनाहों की मगफिरत फरमा देगा। क्या आपने नहीं सुना है बनी इस्राइल का 99 कत्ल करने वाला इंसान? अब देखिए वो कहां आया और मगफिरत कहां हुई, मुझे ये कहना है, उसके बाद मेरी बात शुरू होगी। 99 कत्ल किए हैं, इसको इमाम बुखारी ने अपनी तारीखी किताब बुखारी शरीफ में नकल किया है, मुस्लिम शरीफ ने भी अपनी किताब इमाम मुस्लिम ने नकल किया है, इसी को इब्न माजा ने भी अपनी किताब में लाया है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, ये बनी इस्राइल का शख्स है, 99 कत्ल मुकम्मल किए। जरा मुझे बताइए क्या 99 कत्ल करने वाले की कहीं माफी बन सकती है? सरों को कैसे ऐसे थोड़ा कीजिए, मुझे समझ आ जाएगा, आपको अब उर्दू भी समझ आता है। जिसने 99 कत्ल किए हों, क्या उसकी मगफिरत का कोई जरिया बन सकता है? नहीं, बुलंद आवाज से कहिए वल्लाह। जिसने 99 कत्ल किए हों, क्या वो भी दिल में ये शौक रखता हो कि मेरी मगफिरत हो जाए? 99 कत्ल करने के बाद निकल पड़ा, मैं बुलंद आवाज का मुंतजिर रहूंगा। जब इसका दिल नरम हो गया, 99 कत्ल करने के बाद इरादा किया अब तौबा करूंगा। बुलंद आवाज, थोड़ा और, अब मैं नरम दिल रहकर तौबा करूंगा। इन सारे उलमा की मजलिस में ये बात कहता हूँ अल्लाह, जब इंसान एक ही कत्ल करता है तो दुनिया उस पर हर वक्त लान तान करती रहती है, ये कैसा शख्स है, इसको कैसे अल्लाह बख्शेगा, इसने तो फलानी की जान ले ली है। लेकिन 99 कत्ल के करने के बाद भी जिसके अंदर ये दिल नरम हो जाएगा, निकल पड़ा कि मैं कहीं तौबा कर लूं, रास्ते में राहिब मिल गया, कहने लगा क्या मेरी तौबा हो सकती है? मैंने 99 कत्ल किए हैं, वो आपकी तरह मेरी तरह था, जो ही 99 का तादाद या लफ्ज सुना, कहने लगा क्या बोल रहे हो, क्या 99 कत्ल करने वाले की भी मगफिरत हो सकती है? ये यहाँ से कहने लगा नहीं तेरी नहीं होगी। उसने छुरी निकाली, तलवार निकाली, 100 वाला कत्ल भी मुकम्मल कर दिया, इसका भी कत्ल करके चल रहा है। बस इतनी ही फिक्र है क्या कहीं कोई मिल जाए जिसको मैं अपना हाल सुनाऊं, उसको कहूं क्या मेरा कहीं तौबा हो सकता है या मेरी तौबा की कोई हालत बन सकती है। जब ये आगे पहुंचा तो एक अच्छा इल्म वाला इंसान मिल गया, लेकिन जहां अब उसने भेजा उसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करना चाहता हूं। जब ये इल्म वाला मिला तो उसने कहा तुझे कौन सी परेशानी लायक हुई? अल्लाह तो गफार है। नहीं बुलंद आवाज से कहिए, अल्लाह तो गफार है। अरे उस बदकारा खातून का भी तौबा तो रब ने कबूल किया, जो दिन में कितने गुनाह किया करती थी, कितनी बदकारी करती थी, रब को एक अदा उसकी पसंद आई।
सो जाओगे कि मैं खुद ही पढ़ूं? फिर एक अदा रब को पसंद आई, बुखारी की ये भी हदीस पाक है, एक अदा रब को पसंद आई। वो कौन सी? चल रही थी जंगल में, अब उसने देखा कि किसी कुत्ते को पानी लग गई है, कुत्ता प्यासा बैठा हुआ है, पानी नहीं मिल रहा, या अगर पानी है तो वहां तक इसकी पहुंच पा नहीं रही है। इसने क्या सोचा कि मैं अपना जुराब निकालूं, मोजा निकालूं, या कहते हो कि इसको निकाल दिया उसने, लेकिन वो चमड़े का था। जब उसने पानी लाया, इस कुत्ते को डाल दिया। यहां तो सब कहते हैं कि कुत्ते पालने से क्या होगा, कहते हैं कि नहीं? और शरीयत मुताहिरा ने भी तो हराम करार दिया है। उनके बगैर जो जिसकी हिफाजत किसी चरवाए के लिए किसी जब के लिए की जाए, तो उसके बगैर जिसने भी कुत्ता रखा हो उसके लिए जायज ही नहीं है। लेकिन अल्लाह को अगर कोई अदा पसंद आ जाए, उसके लिए क्या कहते हो मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों? इसने लाया, इसी मोजे में ये पानी इसके मुंह में डाल दिया। अभी एक रात ही गुजरी, इसी रात इस खातून का इंतकाल हुआ। पूछने लगे इस खातून से, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? तो वापस यही जवाब आया कि रब ने मेरे सारे गुनाहों को माफ फरमाया है। तकबीर, नारे रिसालत, आल जम्मू व कश्मीर तहरीक सऊदुल औलिया। अल्लाह ने इसके सारे गुनाह माफ फरमाए। इसलिए किसी ने कहा ना फारसी में क्या खूब, रहमते खुदा बहाना मी जोया, रब की रहमत बहाना ढूंढती है। क्या पता इस मजलिस में भी कोई ऐसा आया हो, क्या पता इस मजलिस में भी कोई इंसान ऐसा आया हो जो मेरी तरह गुनाह उसने किए हो, जिसने मेरी तरह अपने आप को बुराइयों में रखा हुआ हो। बस इतना करे कि वो दरबार बाबा हाजी मोहम्मद खान आया है, वापस खाली लौटेगा नहीं, क्योंकि मेरे अल्लाह का फरमान है, इंद जिक्र सालिहीन ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका व रहमा। जब जब जहां जहां अल्लाह के वलियों का जिक्र हो जाए, वहां रहमतों और वहां बरकतों का नुज़ूल होता है। अरे लोगों, वहां जहां इनकी जिक्र हो वहां रहमत बरसे, लेकिन जहां खुद ब खुद रहमत वाला मौजूद हो, वहां की रहमतों का क्या हाल होगा? वल्लाह मुझे मुकम्मल बात करने दीजिए। वहां से इंसान उठा, फलानी जगह बहुत अच्छे बंदे रह रहे हैं। अगर मैं ये बात करूं गलत ना हो जाए, मैं सिर्फ तजबीह के लिए कहता हूं। आप रदानी कुंडरदान जाइए, वहां कोई अल्लाह का बंदा खास वलीउल्लाह है। अगर मैं इस तरह इस बात को करूं, बारी ना हो जाए वापस दे देना, मैं वापस कश्मीर ले जाता हूं। वहां एक अल्लाह का खास वली रहता है, उसके पास जाओ, मुझे लगता है कि उसके पास जाने से रब तेरे गुनाह माफ करेगा या तेरी तौबा कबूल करेगा। निकल पड़ा ये बंदा। कितने कत्ल किए हैं मुकम्मल? बुलंद आवाज से कहिए ना। 100 कत्ल करने के बाद चला गया। अब कुछ ही देर इसने की है अपनी ये मुसाफत। सही हदीस पाक के अल्फाज हैं, अल्लाह का वो बरगजीदा फरिश्ता उतरा जिसको अल्लाह ने हुकूमत दी है रूह कब्ज करने की। इसको कहा कि जा इसकी रूह कब्ज करना। मगर इधर अगर ये बात आपको समझ नहीं आई तो शायद मुझे समझानी नहीं आई है। यहां पर जब इसको निकाला गया कि फलानी जगह जा, कुछ ही कदम किए थे कि अल्लाह का फरिश्ता हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम आया। इसने इसका रूह कब्ज किया, यानी इसका इंतकाल हुआ। अगर मैं आपसे कहूं क्या इसने तौबा की? हाँ या ना? तौबा की या नहीं? अभी कहां की है? तौबा करने के लिए ही जा रहा है, तौबा करने की गरज से ही चल रहा है। लेकिन जब रास्ते में ही इंतकाल हुआ तो पता चला कि यह इंसान तौबा के बगैर मर गया। वहां से 100 कत्ल किए हैं, गुनाह भी कितना बड़ा
जब 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 दो किस्म के फरिश्ते नाजिल हो गए, समझ में आने लगा कि ये इंसान अब गुनाहगार ही नहीं, फिर ये वाले फरिश्ते कैसे उतर जाते। जब रहमत के भी आए, अजाब के भी आए, एक साइड से रहमत के फरिश्ते इसको खींच रहे हैं, दूसरे साइड से दूसरे अजाब के खींच रहे हैं। अब क्या हुआ वो बात सुनने के लायक है। जब उन्होंने कहा फरिश्तों ने, अजाब वालों ने, ऐ रहमत वालों आप क्यों आए हो, उन्होंने वापस जवाब दिया कि तौबा करने आया था। लेकिन उन्होंने कहा आप क्यों खींच रहे हो, उन्होंने वापस कहा कि इसने 99 बराबर 100 कत्ल किए हैं, ये हमारे लायक है, जहन्नम में ले जाएंगे। जब इनके बीच मसला हल नहीं हुआ, इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा फरमाने लगे, इन दोनों किस्म के फरिश्तों ने ये मामला हजरत जिब्रील पे रख दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहने लग गए, ऐ जिब्रील जरा इसका फैसला कर, क्या ये अज़ाब वालों को दिया जाए या इसको इनके हवाले किया जाए कि जन्नत के लायक। जब जिब्रील ने फैसला सुन लिया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, ये फैसला वहां किया है। वो फैसला क्या था ये सुनना है। अल्लाह ने जिब्रील को बता दिया, जहाँ वो जमीन जो है इसको नाप लेना, अगर इसने ज्यादा कदम वहां किए जहां पर इसकी तौबा होनी थी तो इसको रहमत वाले फरिश्तों को दे देना, अगर इसकी ज्यादा कदम वहां नहीं, अभी कम ही हुए थे, तो इसको उनके हवाले करना जिनके लायक है। जब जमीन को नापा गया, इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, जमीन अभी इसने कुछ ही नहीं की थी ताई, मुसाफत दूर अभी वहां की थी जहां तौबा करने जाना था। लेकिन मेरे अल्लाह की रहमत देखो, लेकिन इस पर मैं बुलंद आवाज का मुंतजिर रहूंगा, मेरे वलियों की अजमत देखो कि इसको इस बंदे ने वलियों के दरबार में ही भेजा था। आपका तौबा अगर कबूल होगा तो उनके ही दरबार पे चला जा। इसीलिए जब जमीन को नापा गया, अकल तो ये तसव्वुर करती है अभी तो कुछ ही इसने किया है ताई सफर, ये तो अजाब वालों फरिश्तों को लेना था। लेकिन जब जमीन को नापा गया, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म किया, जहां इसको जाना था उस जमीन को सुकर दो, उस जमीन को तंग कर दो। या अल्लाह इसमें वजह क्या है? कहा ताकि मेरे वलियों की करामत जिंदा रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने औलिया, तहरीके सौतुल औलिया, मेरी तकबीर, मेरी इन वलियों की करामत जिंदा रहेगी। इसीलिए कश्मीरी के अशार दोहराने जा रहा हूँ, सुनोगे? वो आपके लिए, मेरे लिए। जब 100 कत्ल करने वाले को मगफिरत हो सकती है, या अल्लाह आज इस बड़े मजमे में जितने भी है आज इनकी भी मगफिरत फरमा। कहिए फिर, शज़ाइलोल जाने शान बड़ी पीर साने ऐसे हज़ाई ने खान सब पीर साने हासा निनुदबाने शान बड़ी पीर ने दरबार में आया। ए बाबा हाजी खान अलैहि रहमा, आज इन सब की भी मगफिरत फरमा, आज इनकी हाजिरी कबूल फरमा। बस कहिए, यूस अखा तो ही निशान बार जाने खान सब पीर साने ऐसे हज़ाई लोल शान बड़ी पीर। अगर इस मजलिस में कोई बीमार या गम वाला आया हो, हाथ बाहर करें।
اور ایسے ایسے الفاظ میں ندا دیں واللہ یوس اخا آسن بیمار روزان تس چون